छुरियों के वार से कुछ लोग आते हैं और कत्ल करके चले जाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਛੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾ ਬਸ ਹੱਥ ਛੱਡਤਾ। 5 ਲੱਖ रुपया ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ करना है। कत्ल होने के बाद भी जो है ना यहाँ पे ललकारे मारे जा रहे हैं, कोई गल नहीं, कोई केस नहीं हैगा, ਅਸੀਂ फिर वेख लांगे, इन्हां दा होर मारांगे। नाज़रीन, शेराकोट की हदूद में एक कत्ल होता है। छुरियों के वार से कुछ लोग आते हैं और कत्ल करके चले जाते हैं। कत्ल करने की क्या वजह है? कोई तनाज़ा है, कोई लड़ाई झगड़ा? इनका तनवीर जिसको कत्ल किया छुरियाँ मार के, उसका बेटा हमारे साथ मौजूद है जो ऐनी शाहिद है, जिसके बाप को सरेआम कत्ल किया गया उसकी आंखों के सामने, और कत्ल करने के बाद यहाँ से जो है ना वो मुलजिम जो है वो फ़रार हो चुके हैं। सारा वाक़या है कि यह लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और कत्ल तक ये पहुँची है। तुसी वड्डे बेटे जे तनवीर दे या छोटे? मैं ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ। ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ? ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਰੀ? ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੇ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੇ ਨਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਝਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਣਖ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਏ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਫੌਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਦਵਾ ਦਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਛੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੁਰੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਨਾ 2 ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾ ਬਸ ਹੱਥ ਛੱਡਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ठीक है। केस जड़ा उनके ते पै गया सी? हाँ जी। आप क्या लगते हैं तनवीर के? मैं तनवीर का भाई हूँ, छोटा। छोटे भाई हैं आप? जी जी। तो छोटी सी तल्ख कलामी लड़ाई पे इन्होंने FIR दी, फिर उन्होंने 5 लाख रुपया सुलह का ले लिया। सुलह का 5 लाख किस मकसद के लिए लिया? वो यही मकसद था कि उसी टाइम भी इन्होंने ना उसको मारने का इरादा किया, ठीक है। इनकी हवेली के बाहर झगड़ा हो रहा था हमारा, तो इनके जिस बेटे ने अभी कत्ल किया है ना, जिन्होंने पहले भी शहबाज, ये अपने घर अंदर हवेली से छुरी उठा के लाया है, ठीक है। इसका वालिद जो है ना उससे छुरी पकड़ के फेंकने लगा है एक साइड पे, उसको ना पेट के ऊपर छोटा सा कट लग जाता है। ये जो है ना उनको उठाते हैं, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं सब। पहली लड़ाई की बात? जी जी, पहली लड़ाई की, जब इन्होंने हमारी ईंटें चोरी की थी इधर से, उस टाइम की बात है। तो हमारे बड़े बीच में पड़ते हैं, वो सब सुलह करवा देते हैं। सुलह करने के बाद ना ये बोलते हैं जी हमने इसका ऑपरेट करवाया है, हमारे हॉस्पिटल में पैसे लगे हैं, हमें जो है ना 5 लाख रुपया दो, हम सुलह करते हैं, ठीक है। हमारी इनके साथ सुलह हो जाती है, तकरीबन 22 या 23 रमज़ान को हमारी सुलह हो जाती है इनके साथ ना। उसके बाद मामला क्लियर हो जाते हैं, ईद आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा इनके साथ वैसे मिलना जुलना बोलना, हमारे दिल में कोई बात ही नहीं है, इनके दिल में फिर भी रंजिश थी।
इन्होंने जब ईद का तीसरा रोज़ था, तीनों बाप बेटों ने शराब पी है। शराब पीने के बाद इनकी हवेली के बाहर मैं जो मुझसे बड़ा है ना, तनवीर से छोटा है, उसकी पान वाली शॉप है उधर, वो उसकी शॉप पे गए हैं। उससे जो है ना इन्होंने गालियाँ दी हैं, झगड़ा करने की कोशिश की है, पर उसने दरगुजर किया है। उसने हमको भी कॉल करके बोला कि यार तीनों बाप बेटे उधर को आए हैं हवेली की तरफ, ख्याल करना, घर में ही रहना, बाहर ना निकलना, और ये तीनों उधर को ही आए हैं। कोई मामला खराब ना हो जाए। जी जी। ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना हम घर पे ऊपर ही थे, मैं भी ऊपर था, ये भी ऊपर था। इसका वालिद आता है बाहर से, बैठा है, बैठने के बाद ना बोलता है मैं आ रहा हूँ नीचे से होके। वो नीचे जैसे उतरता है ना, दरवाजे के आगे से थोड़ा 2-4 कदम आगे होता है, ये तीनों बाप बेटे जो है ना उसको पकड़ लेते हैं। इनका जो वालिद है, हमारा जो चचा है, वो पीछे से उसको पकड़ता है, उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है ताकि ये ऊपर किसी को आवाज़ ना दे सके, शोर ना मचाए। अंधेरा था। और उसका छोटा बेटा भी साथ है, वो पकड़ रहा है कि मेरे बाबा को ना मारो। इनके बेटे ने पहले उसके दिल के ऊपर छुरियाँ मारी हैं सीधी, और इसका जो छोटा बेटा है उसने ना इधर साइडों पे जो है ना बहुत ज़्यादा छुरियाँ मारी हैं। उसके बाद वो छोटा बेटा शोर मचा रहा है, सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ना उसके पीछे भी लग गए हैं छुरी लेके। वो छोटा सा बच्चा है 8-9 साल का, ये उसके पीछे लगे हैं, वो भागा है। और ये 2 बाप बेटे इधर भाग गए हैं, ये मोटरवे की तरफ, और एक इनका बेटा ये साथ वाली गली से होकर निकल जाता है। हम ऊपर से देखते हैं, जब भाग के नीचे आते हैं, हमारा भाई दरवाजे में पड़ा हुआ है नीचे, खून से लथपथ था। हमने उठाया जल्दी जल्दी, उसको उठा के हम यो हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। अभी मुझे ये बताएं कि कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? तीनों अरेस्ट हो चुके हैं ना? नहीं, 2 अरेस्ट हुए हैं, और अभी उनका वालिद साहब बाहर ही है। उनका वालिद साहब बाहर है, उसको ये अफसोस नहीं हो रहा कि चलो कत्ल हो गया हमसे, हमें माजरत करनी चाहिए, शायद हमारी बात बन जाए। वो आगे से यही बातें करता है, कोई बात नहीं, किहड़े फाहे लग गए ने, कोई गल नहीं, अगों फिर इन्हां दे एक अद्धा मरवा देंगा, चलो इंज ते फाहे लगने ही लगने ने, एक अद्धा होर मरवा देना वा, कोई गल नहीं। खैर उन्हां दे दिल दे विच कोई खौफ नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। साडी यही अपील है CCD ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ करना है। तो सानू पुलिस इस पे काम नहीं कर रही अभी? पुलिस ने उसके 2 बेटे गिरफ्तार किए हैं, पर इनका वालिद साहब ने टैरम बेल करवाई हुई है। बाहर यही अफवाहें आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं एक और मरवा दूंगा, कौन सी इतनी बड़ी बात है, केड़े फाहे लग चले ने। अच्छा, यहाँ पे बैठे हुए थे, ज़रा विज़िट करवाएं, आइएगा ज़रा इधर। ये जी हवेली के बाहर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हुए थे, और ये इनका घर है। यहाँ पे वो छुप के बैठे हुए थे सारे लोग, ठीक है, और छुरियाँ मार के यहाँ से फिर जी भागे हैं इस साइड पे। एक उनका बेटा इस साइड पे भागा है, वो आगे से दूसरी गली में रास्ता जाता है, उधर से दूसरी गली में हो गया, और बाप और बेटा इधर को भाग गए, ये मोटरवे से क्रॉस कर गए दूसरी साइड, दूसरी जगह चले गए हैं। तो हम जब तक नीचे आते हैं, हमने देखा वो खून में बहुत लथपथ था, हमने उसको उठाया जल्दी जल्दी, हम उठा के तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर वो रास्ते में दम तोड़ चुका, तो उसकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। कितने बच्चे हैं तनवीर के? ये बड़ा, ये उसका बड़ा बेटा है, उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी है। तो ये उसका बड़ा बेटा था, इसने मौके पे, फिर ये भी था, मैं भी था, हम इसको जल्दी जल्दी बाइक के ऊपर डाल दें, ले जाते हैं, पर वो जाते ही दम तोड़ चुका। अभी कत्ल 3 लोगों ने किया है, तीनों ने छुरियाँ मारी हैं, 2 अरेस्ट हैं, एक ने इंटरम ले रही है बाहर से ही, क्योंकि वो अरेस्ट नहीं हुआ। 2 ने छुरियाँ मारी हैं। उनका वालिद साहब जो है ना उसको पीछे से पकड़ के रखा, जफ्फा डाला पीछे से, उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा है कि ऊपर घर में किसी को आवाज़ ना दे ले, किसी को बुला ना ले कि जल्दी जल्दी आओ। आपने पकड़ा है, बेटों ने छुरियाँ मारी जी, अपने बाप ने जदोकोब कर लिया ना, उसको पकड़ लिया है, उस पे जो है मुकदमा वो और नौयत का होगा। जिसने छुरियाँ मारी 302 या 324, उस पे वो 302 लगे। बिल्कुल, अपने बेटों को बोलता है मारो इसे, इसने जो हमारे ऊपर रिश्तेदारी कोई ख्याल नहीं आया, ज़रा भी नहीं आया। बस उन्होंने दिल च जिहड़ी रंजिश सी, उन्होंने अपना बदला लिता है। बदला लैन दे बावजूद ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਗੇਰੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, इसको वाइंड अप नहीं कर नहीं वाइंड अप करना नहीं चाहते हो बिल्कुल भी। तो इस पे ये तो ना हो कि अभी आपने केस भी करवा दिया, उसके बाद कोई सुलह, कोई पैचअप हो जाए, क्योंकि रिश्तेदार हैं, कल को आपको पता है ऐसे केसेस में यही होता है कि सुलह सफाई से फिर जो है मामला ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, इसके बाप का जो कत्ल हुआ है जी जी, उसकी भरपाई कौन करेगा?
वही सुलह ना। फिर आप लोग कर सकते हैं इस पे? नहीं, हम कब फिर सुलह करेंगे जब अगला हमको फिर धमकियाँ दे रहा है कि मैंने आना है, मैंने तुम में से किसी एक को फिर मार देना है। तो ये इस चीज़ को देखते हुए हम धमकियां दे जी फिर धमकियाँ दे रहा है, उसके बावजूद भी फिर हम ये सुलह तो नहीं ना कर सकते। ऊपर से ये बोलता है जो केस की पैरवाई करता है उसको भी हम देख लेंगे। अच्छा, विक्टिम कौन है, मुद्दई कौन है इस केस का? इस केस का विक्टिम मुद्दई जो है वो मेरा बड़ा भाई है नवीद। नवीद है। जी ठीक है जी, बिल्कुल नाज़रीन, डीआईजी फैसल कामरान साहब और आईजी पंजाब सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा कत्ल होने के बाद भी जो है ना यहाँ पे ललकारे मारे जा रहे हैं कि कोई गल नहीं, कोई केस नहीं हैगा, ਅਸੀਂ फिर वेख लांगे, इन्हों का होर मारांगे। इस मामले को यहीं पे वाइंड अप करना है। इसके बाप को जो कत्ल किया है ना हक कत्ल किया है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, टीम तश्कील हो, जो बंदे अरेस्ट हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारे इदारों का काम है। इस पे आगे भी काम हो रहा है, मज़ीद जो है ना इस पे सख्ती लाई जाए, नहीं तो फिर वो जैसे बता रहे हैं कि अभी उन्होंने कहा कि हमने फिर आना है, तो फिर ये कत्लो गैरत जो है ये पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ये ऐसे चलती रहेगी तो क्राइम कहाँ पे कंट्रोल होगा। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।